Good morning, all of you. Just studied the economics concepts. In last lecture, we covered the number of points. Today, we are studying autonomous investment patterns, and then the further study the autonomous investment pattern. The two patterns of investment. The first is autonomous, and second is hello all. Inducers. Okay, the first is autonomous. Then autonomous is we study regarding to the graphical view of horizontal investment. In this investment, the autonomical body are there. Here, the amount of autonomous amount of investment is there, and also policy is there. Okay, in this policy pattern, we are regarding to the study. The investment is horizontal way. It means the same rate, but investor is depending on the saving here. In this saving, we are studying regarding to the two metrolocation body. Two metrolocation body, it means future oriented. अब फ्यूचर ओरिएंटेड कैसा होता है कि रेट अगर सेम है, इट मींस पॉलिसी सेविंग रिगार्डिंग रहेगी और लॉन्ग लिस्टिंग रहेगी। और जब लॉन्ग लिस्टिंग कोई सेविंग रहता है तो उसके ऊपर जो काम किया जाता है उसमें कैसा रहता है, रिस्क कम रहता है, लो रिस्क, और इसके हिसाब से वो फॉलो होने वाला है। अब लो रिस्क रहेगा तो वो ऑटोनॉमिकली फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉफिट जनरेट करके देगा और उसके ऊपर वो वर्क करेगा। एज कंपेरेटिव इंडेड फॉर्मूला में क्या रहता है, ग्राफ चेंज होता है। इंडेड में क्या होता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इट इज डिपेंडिंग ऑन वे ऑफ इंक्रीजिंग इन रेट ऑफ इंटरेस्ट and here the policy of investment. First rate of interest lower था तो policy investment less है as compared to the rate of interest as increases high हो गया, policy of amount increases. This is the change. This change is indicate. अब indicate में क्या होता है, that indicated the rate of interest increases or decreases and it is affecting the investment or increases or decreases. Are you getting? From that we are studying the marginal efficiency of capability. इसी के ऊपर इसने स्टडी किया हुआ है। Okay, come to the point. From this formulatic pattern, C equal to R1 upon 1 plus R1 upon 1 plus R plus R1 upon 1 plus R second. It means the investment, first investment, second investment, third investment. Here the multiplier are there. Multiples of the rate of increases. If the rate of increase decreases, negatively back जाएंगे. It is depending on multiplier consumption. And this is work as supply of price. It is work as supply of price. यानी कीमतों की supply. The rate of amount is equal to the discount possibility. इसके ऊपर है supply of price is equal to discount policy. डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दे रहे हो, कितना सप्लाई है, इस सप्लाई ऑफ अमाउंट का जो रेशियो रहता है, हायर रेट ऑफ डिस्काउंट हायर से, लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट तो लोअर से,
graph are affected by this. Okay, then here we have the investment multipliers affected in income. Assuming some assumptions is there for this formula, some assumptions are there, and the assumptions are assumption of the concept, and the concept की assumptions है, the first assume that continuous investment. अब इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए. इट मींस फर्स्ट आर, देन आर प्लस वन, देन आर प्लस वन प्लस आर. इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो रही है बिकॉज द पॉलिसी रिगार्डिंग रेट ऑफ इंक्रीज कंटिन्यूअसली increases, the investment are increases. If pause is there, not it is not an autonomous pattern. if एक स्लाइड पे एक रेट ऑफ अमाउंट पे चलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएशन हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट हाई होगी. दिस इज द फर्स्ट assumption. Second, there is no change in marginal proportion. There is no change in marginal proportion consumption. मार्जिनल प्रोपोर्शन कंजम्पशन जो है इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. इट मींस तुम्हारा जो कंजम्पशन और रेट है, तुम्हें जितना कंज्यूम करना है वो रेट ऑफ परसेंट है वो सेम होना चाहिए. मींस 50% है तो ऑल टाइम 50% होना चाहिए. वी आर स्टडीइंग ग्राफिकली ऑन दैट. ओके, एंड थर्ड वन पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन प्राइस लेवल. अब प्राइस लेवल इट मींस द प्राइस ऑफ कमोडिटी या इन्वेस्टमेंट जो फिक्स होगी. इट मींस यहाँ उसने कंज्यूम किया हुआ है 100 करोड़, तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट की हम स्टडी करेंगे. ओके, एंड देन स्टडी ऑन क्लोज इकोनॉमी. द लास्ट पॉइंट इज क्लोज इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करते हैं. अगर हम टेबल देखेंगे तो ये इजी हो जाएगा. डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन के लिए 4 पॉइंट है. इन पॉइंट को मैं टेबल में लिखा हूं. इंक्रीज इन टोटल इनकम, टेबल का नाम रखेंगे इंक्रीज इन टोटल इनकम. अब इंक्रीज इन टोटल इनकम में पहला क्या होगा? देखो हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट इज मल्टीप्लायर. कितने? 0 1 2 3 4 एंड 5 या 4 इन्वेस्टमेंट लेता हूं. ओके, then initial amount. अगर इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है तो बोला नो चेंज इन प्राइस पॉलिसी. कंसीडर करो 100 करोड़ इनिशियल अमाउंट है तुम्हारी. ओके, एंड कंजम्पशन, इनकम एंड क्यूमुलेटिव टोटल. ओके, अगर डिस्कस करेंगे इस ग्राफ को तो यहां देखो इस टेबल में योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टाइम अगर मल्टीप्लायर कोई नहीं है तो तुम्हारा कंजम्पशन क्या होगा? अगर कोई नहीं है तो खर्चा कुछ नहीं होगा. कंजम्पशन इज 0. इट मींस इनकम इज डायरेक्टली 100 इनकम हो गया. 0 प्लस 100 इट्स बिकम टू क्यूमुलेटेड 100 क्यूमुलेटेड टोटल तुम्हारे इनकम जनरेट कर रहे हैं. देन द अमाउंट आर इंक्रीजेस. द सेकंड का इसमें अब यही 100 का क्या हो रहा है? ये जो 100 इन्वेस्टमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से कंजम्पशन 50% हो गया. पहले ही बोला हुआ नो रेट ऑफ कंजम्पशन हैव चेंज. तो रेट ऑफ कंजम्पशन का 50% पर करता है तो 100 का 50% 50 है. तो रिमेनिंग इनकम 50 रह गए. इट मींस 100 प्लस अभी न्यू इनकम कितनी होगी? 150 क्यूमुलेटेड टोटल्स. ऐसे क्रॉस टोटल होगी इधर. देन द नेक्स्ट इज अभी जो इनकम है इसका 50% नेक्स्ट ईयर कंज्यूम होगा. 50 का 50% means 25. Remaining 25 as it is. 25 150 plus 25 178 75 cumulative income. टोटल इनकम हो रही है फ्यूचर ओरिएंटेड. देखो कैसे ग्राफ इंक्रीज होते जा रहा है. आज तुम्हारे 100 इन्वेस्टमेंट है, अब तक तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंजम्पशन वगैरह के साथ कहां पर 175. इन इंक्रीजेस. अभी इसका 25% 1.5 हो जाएगा. फिर 20.5 रिमेनिंग है इसमें ऐड हो जाएगा वो, और मेरे हिसाब से टोटल हो जाएगी 187.5. देन यहाँ पे इसका 6.25 हो जाएगा प्लस 6.25 और यहाँ पे वो अमाउंट इंक्रीज होगी.
here the amount increases, but देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और उसी का 50% से कंज्यूमिंग करके इसको कवर किया गया है, यानी रेट, यानी जो चार assumption थे, the initial amount of investment as said, rate of investment and consumption as said, इन सबको बना के टोटल तुम्हारा इनकम ओरिएंटेड टेबल बन रहा है. ओके ऑल ऑफ यू. देन the next point is how can it calculate? Simple calculation formula, multiplier equal to increase in aggregate income divided by increase in investment. ओके, अब एग्रीगेट इनकम कितनी है उसकी 100, 150, 175 या सबकी टोटल हो, एग्रीगेट करो तो सबकी टोटल करो. और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतनी है 100. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली तुम्हारा आंसर आएगा. इसकी टोटल कितनी है, कंसीडर करो इसकी टोटल होगी मे बी 200. अब इसके बाद 6.25 है, उसके बाद 3.125 हो जाएगा प्लस 3.125. यहाँ अमाउंट कितनी आएगी 196.87. ओके, ऐसे होते जाएगी. सॉरी 193.75, 193.75, then 196.87. The whole total is 200. Then यहाँ अमाउंट आएगी 200 divided by 100. तो कितना हो जाएगा देखो, it is 200% or 2% of whole work. Okay, multiplier कितने वहां पे 2 है. Then the next point or the last point of your module is वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. ऐसा होता है टेबल है, उसको इसने फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, हियर द number of point are covered and this point is recovered the number of policies and your module are closed there. The first module is over there. For next lecture we are starting the second module. Okay, from this first module the important question are I noted there, mentioned in your notebook also. Okay, it is important for also your unit test. Scope of macroeconomics. Importance, scope and importance रखो. उसके बाद explain the concept macroeconomics and all. Also your in Shell publication textbook में available है. ज़्यादा मुझे क्वेश्चन देने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है. ओके, तो the study of this module कि हमने क्या स्टडी की है उसके ऊपर अगर हम तुम लोग डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट इज के हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी की है. फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, स्कोप एंड कंसेप्ट. देन हमने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ स्कोप है. द फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ इनकम, देन थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने डिस्कस किए. देन दिस डिस्कस को हमने इन्वाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इनकम. अब ये कहाँ मैक्रो इनकम इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हमने डिस्कस किए. और जब डिस्कस किए तो अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, इन इकोनॉमिक पॉलिसी, इन जनरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, देन नेशनल इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, बिजनेस साइकिल्स एंड अदर जगह पे ये इस्तेमाल होती है और इसका बेनिफिट है. देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो सर्कुलर फ्लो कैसा इनकम का, तो पहला है y इक्वल टू सी, मतलब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन. देन उसमें चेंज आता है y इक्वल टू सी प्लस S या C plus I. It means Y equal to consumption या income equal to consumption plus investment. इसके बाद हमने उसको और थोड़ा एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके उसके हम नेक्स्ट प्रोसीजर C plus I plus G पे गए. Here the study regarding to Y equal to C plus I plus G plus S
तो यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल टू इनकम, c फॉर कंजम्पशन, i फॉर इन्वेस्टमेंट एंड g इज हियर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये कैसा होता है, ये ब्रीफली हमने स्टडी किए। देन अगर फॉरेन इनकम एक्सपेंडिचर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो होता है y इक्वल टू c plus I plus g plus x minus n। x minus n which stand for export less import। इसके ऊपर हमने डिस्कस किए। देन उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम डिस्कशंस, एफिशिएंसी ऑफ लेग, देन लिंक बिटवीन प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देन नेटवर्क्स देखे उसके, देन इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोपोली एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी के ऊपर डिस्कस किए। देन मेजर ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट कैसा है, तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, व्हाट इज रियल नेशनल प्रोडक्ट क्या है वो देखे। देन नेशनल इनकम क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, अकाउंटिंग से क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी यूज होती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इकोनॉमिक प्लान क्या होता है, द नंबर ऑफ पॉलिसीज डन दैट। देन वी आर स्टडीइंग द कंजम्पशन एंड ग्रीन एंड एनएनपी कंसेप्ट। ग्रीन एंड एनएनपी कंसेप्ट में हमने डिस्कस किए जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। अब इनकम फ्रॉम अबॉर्ड और एक्स माइनस एन, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक्स माइनस एन वाला जो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये इंडियन डोमेस्टिक पर्सन होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, और एक बंदा रहता है जो अबॉर्ड में रहता है लेकिन इंडिया के लिए कमाता है। तो उनका जो डिफरेंस है वो यहाँ हमने डिस्कस किए। देन उसके ऊपर से हमने जीएनपी निकाले, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड उसमें से फिर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया। डेप्रिसिएशन इट मींस द लॉसेस इन अ नेशन, ओके। उसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमने एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नाम दिया, ओके। देन द कम पॉइंट नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, इसके ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी किए। व्हाट इज इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए नेशनल इनकम कैसे फॉलो होता है, उनका रिलेशन क्या है, इसके ऊपर किए। और जो रिलेशन की डिस्कस के बाद हमने ट्रेड साइकिल के ऊपर थोड़ा ब्रीफली स्टडी किया। तो ट्रेड साइकिल इट मींस द साइकिल ऑफ, 4 पॉइंट के ऊपर ट्रेड साइकिल काम करता है। तो फर्स्ट इज रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, पीक, रिसेशन एंड डिस्प्रेशन, ये जो होते हैं। देन फिर से वो रिकवरी के ऊपर आता है। ये जो ग्राफ एक वेव्स लेवल का ग्राफ बनता है उसके हमने स्टडी किए। देन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से पैटर्न्स है, कौन से फेज है, किस फेज को बेनिफिट देता है, किस फेज में लॉस रहता है, उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद ऑल फेज के बाद हमने केन्स थ्योरी भी डिस्कस किए। केन्स थ्योरी में उसने एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑफ मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, जो सी प्लस आई के ऊपर काम करता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट क्या है वो हमने बाय टेबल स्टडी किए। उसके अंदर एडीएफ इक्वल टू एएसएफ लिए थे, यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। और उसके ऊपर जो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन है उसको ब्रीफली स्टडी किए। देन उसमें मनी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है, देन प्रॉपर्टी इनकम के दो हिस्से कैसे यूज हो सकते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड नॉन सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्रॉपर्टी यील्ड क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कैसा इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर सकते हैं। ब्रीफली हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया, ओके। देन हमने इनकम इक्वल टू कंजम्पशन का फॉर्मूलेटिक पैटर्न दिखाया, टेबल जनरेट किए लास्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर टेबल के ऊपर से ब्रीफली स्टडी लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट, यह मॉड्यूल खत्म हो रहा है उसकी रिकवरी कर रहा हूं मैं। देन द एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम क्या होता है उसका एक टेबल किए थे, उसमें हमने इनकम, कंजम्पशन और उसके बाद एपीएस, डीपीएस वगैरह कैलकुलेट किया और उसको वैल्यूएशन निकाले और उस वैल्यूएशन को रिकवर किए। देन मार्जिनल प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, एमपीएससी, और उसके ऊपर जो टेबल है लाइक इनकम और सेविंग, इसका जो प्रोपोर्शनल इनकम है, बिगिनिंग में हमारी इनकम क्या होती है, उसके हिसाब से हमारा कंजम्पशन क्या होता है, हाउ मच इफेक्टिव एंड ऑल, उसके ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी किए, प्रोपोर्शंस निकाले। प्रोपोर्शंस के बाद इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है वो आज हमने स्टडी किए। देन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है, मीनिंग क्राइटेरिया क्या है, देन फॉर्मूलेटिक पैटर्न क्या है उसका, सी आर प्लस वन, देन प्लस आर प्लस वन प्लस डिवाइडेड बाय आर प्लस वन, प्लस आर प्लस वन प्लस आर प्लस वन ब्रैकेट टू, ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 4, ऐसे कितने वो मल्टीप्लायर होते रहते हैं, जितने इन्वेस्टमेंट रहेंगे उतना वो मल्टीप्लायर होता रहता है। उसके अजम्पशंस है, 4 अजम्पशंस है। पहला मैंने बोला कि वो कंटीन्यूअस इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देन सेकंड इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, देयर इज चेंज इन प्राइस लेवल, क्लोज इकोनॉमी ना। देन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का टेबल हमने किए जो लास्ट पॉइंट था इसका, और यहाँ पे ये मैंने
एंड हो रहा है इसे डिस्कस किया। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर maybe we are studying the second module I started, recover of next module. Okay, thank you all of you.